Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we were studying about the nature of सर्वोदया. कुछ पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए थे, राइट. देन वी स्टार्टेड विद द विलेज पंचायत. अपना आधा हो गया था, राइट. और जो लास्ट का पैराग्राफ बचा था, द मेन एजेंडा ऑफ गांधीयन पॉलिटिकल प्रोग्राम इज द सोशल कंस्ट्रक्शन इशू. The village panchayat can take care of education, health, sanitation. It can help in abolition of untouchability and weaving khadi for their need. Their needs are taken care of by the collective effort without much independence on the urban economy. Division of labor, which creates a basic for some caste to do intellectual labor and the other manual labor is not proper. Gandhi does not allow any separation of intellectual and manual labor. Practice of untouchability is an institutional arrangement for creating violence in society. Combination of hand and head creates an integral personality. Then Hinduism. Gandhi also accepts the four stage of life, which is the underlying principle of any normative order. Then moving forward, हिंदुइज्म है यहाँ पे एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ. और चारों स्टेज हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट. हर कास्ट का ये 4 स्टेज से जाना ही चाहिए. उसके अंदर का सेकेंड स्टेज, व्हेन वन गेट्स इन्वॉल्व इन द सोशल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्शन विच हेल्प्स इन continuation of a civilization. Third stage, when one takes one's action beyond the family boundary and enters into public domain. Every citizen takes to the public domain, then politics become everybody's profession. Gandhi was against the professional political whose encouragement corrupts public life. Moreover, democratic institutions work efficiently only when technological needs of society remain under human control. Like technological advancement might create an alienated being which create a psychological base for doing violence. Technological advancement may be the base of creating unemployment and in the end result it creates poverty. Unemployment and poverty are the root cause of economic unit. A person cannot be an active social unit. Then role of industrialization. Now role of industrialization में क्या है? सर्वोदया society has space for industrialization and technological advancement, but it should not go beyond human control, nor should it destroy the ecological base of the society. Industrialization leads to concentration of economic power, which cuts at the roots of democracy. Concentration of economic and political power helps a small majority who can sabotage the institutional basis of a democracy. Gandhi opposes the centralization of economic power in rural India. Distribution of land is an economic and political program for Gandhi. And role of education. Education remains a major means for achieving a Sarvodaya society. Gandhi was favoring compulsory primary education. Gandhi was in support of basic education. It a critical look of own and deeper understanding of the problem of a society, which is the responsibility of a pedagogic system. Social defect in the social organization can be noted with the help of education. Practice of untouchability, division of labor on the basis of caste system has no place in Sarvodaya society. Right? Then basic education creates love for manual labor, which helps to a child to question the division of labor on the basis of caste system. Education plays a vital role in mediating between individual consciousness and community consciousness. Unless community consciousness is created, collective energetic cannot be channelized in a creative manner. Moving forward towards the theory of social change. This leads us to a point that Gandhi has a evolutionary concept of social change. See, ये एक पॉइंट पे जहाँ पे आप बनाते हैं, जहाँ पे गांधी जी क्या है,
Gandhiji has an evolutionary concept of social change. Logic of historical development convinced him that the process of social change is very slow. See, अब गांधी जी को क्या पता चलता है, वो जो प्रोसेस है, लाइक डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज का, ये बहुत स्लो है, ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है. स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री आर द कनेक्टेड पॉइंट्स इन अ चेंज. सी, स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री क्या है? दिस आर द कनेक्टेड पॉइंट्स इन अ चेंज. Slow change in a society does not lead him to pessimism. See, slow change in society does not lead him to pessimism. Gandhiji was very optimistic that goodness of an individual would compel him to do something good for the society. See, गांधी जी क्या मानते थे? अगर आप किसी का अच्छा करो तो क्या होगा? अपने आप दूसरों का भला होगा और अपने आप सोसाइटी का भी भला होगा. बस इतना है कि आप सबका अच्छा सोचो, सबका अच्छा करो. समथिंग गुड कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल ओनली बाय नोइंग द रॉन्ग थिंग्स ऑफ द सोसाइटी. सी, हर इंडिविजुअल अगर अच्छा करे सोसाइटी की तरफ, हाँ, दूसरे इंडिविजुअल की तरफ, तो क्या होगा? सोसाइटी में गलत चीज़ें होंगी नहीं. और अगर आपको लगता है कि बाबा सोसाइटी में ये चीज़ गलत हो रही है, तो आप अच्छी चीज़ करो ना, वो तो अपने आप वो गलत चीज़ भी सही होने लग जाएगी. इंडिविजुअल, सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी प्ले अ क्रूशियल रोल इन restructuring a society which brings less tension and violence. See, individual, social group, community, all this play a very important role. सही बात है ना? इंडिविजुअल, सोशल ग्रुप और कम्युनिटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर अपने को रिकन्स्ट्रक्ट करना है सोसाइटी में. और अगर ये तीनों अच्छे से काम करें तो कम से कम टेंशन होगा और कम से कम वायलेंस होगा. लाइक मिनिमम ये सारी हो जाएगी. टेंशन, वायलेंस, ये सब मिनिमम हो जाएगा अगर हर कोई अच्छे से काम करे तो. इन हिज थॉट ही वॉज ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर रूल. सॉरी वी मिस्ड आउट 2 सेंटेंस. गांधी जी रिकॉग्नाइजेस द कंसेप्ट ऑफ क्लास. गांधी जी ने ये जो क्लास सिस्टम जो भी है, ये पूरा उन्होंने सोच समझ के देखा, पूरा अच्छे से स्टडी किया, और तब उनको ये कंसेप्ट ऑफ क्लास पता चला. एंड द रोल ऑफ वायलेंस इन चेंजिंग अ सोसाइटी. अब ये कंसेप्ट ऑफ क्लास भी पता चला उनको और द रोल ऑफ वायलेंस भी पता चला इन चेंजिंग अ सोसाइटी. इन हिज थॉट ही वॉज ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर रोल. सी, इसी थॉट में वो क्या कर रहे थे? ही वॉज ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर रोल. गांधी, like Buddha, understands the structure basis of violence in Indian society. See, Gandhi, like Buddha, understands the structural base of violence in Indian society. Conflict and violence cannot bring a better society. See, conflict and violence, क्या अच्छा सोसाइटी बना सकते हैं क्या? हर बार कॉन्फ्लिक्ट होएगा, हर बार वायलेंस होगा, तो आपको क्या लगता है अपना अच्छे सोसाइटी बना पाएंगे? नहीं. It would be much difficult to have a good society. Gandhi's reaching of non-violence and satyagraha has a Buddhist philosophical underpinning. See, गांधी जी के जो थॉट है नॉन वायलेंस सत्याग्रह, it has a Buddhist philosophical underpinning. At the same time, he allows the individual to take initiative. उसी वक्त क्या है? गांधी जी allows all the individual to take the initiative. Social group can get activated and collective will can bring social change. सोशल ग्रुप क्या है कि अच्छे से काम करने लगेंगे और हर सोशल ग्रुप, हर इंसान अच्छे से काम करेगा तो क्या होगा? बट ऑब्वियसली वी कैन ब्रिंग सम सोशल चेंज इन आवर सोसाइटी. अपनी सोसाइटी भी चेंज हो सकती है और जो गलत चीज़ें हैं वो भी सही हो सकती है. एज अ रिजल्ट a non-violent society, as a result, a non-violent social order can be created only if there is no structural base of violence. से अब नॉन वायलेंट सोशल ऑर्डर कब क्रिएट कर सकते हैं अपन? अगर वायलेंस ही नहीं होगा, हर चीज़ एवरीथिंग गोज ऑन इन अ स्मूथ वे, इन अ बेटर वे, तो क्या होगा? वायलेंस होगा ही नहीं, सब कुछ अच्छे से होगा. गांधी found that in the Indian society there are multi bases for violence. से गांधी जी ने क्या देखा? अपने इंडियन सोसाइटी में क्या है?
बहुत वायलेंस है, अलग अलग तरीके के बहुत ज़्यादा वायलेंस है. इकोनॉमिक, कास्ट, रिलीजन ऑल कैन इरप्ट इनटू वायलेंट पॉलिटिक्स. से इकोनॉमिक, कास्ट, रिलीजन सब कुछ वायलेंट पॉलिटिक्स में आ जाता है यहाँ पे. गांधी by recognizing material and non-material basis of violence contributed to the body of human knowledge. See, गांधी by recognizing material. See, गांधी जी को समझ में आया कि ये वायलेंस क्यों हो रहे हैं, मटेरियल, नॉन मटेरियल बेसिस ऑफ वायलेंस. ये सारे जो वायलेंस, अलग अलग टाइप के वायलेंस, ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूटेड टू द बॉडी ऑफ ह्यूमन नॉलेज. ये ह्यूमन नॉलेज की वजह से जो कम बुद्धि वाले रहते हैं, जिनको अक्ल नहीं रहती, जिनको किसी चीज़ की समझ नहीं होती ना, कुछ भी बाकी हर छोटी छोटी बात पे वो वायलेंस करने उतरते हैं. सो गांधी जी ने ऐसा बोला है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ गांधीयन सर्वोदया. सी, Gandhi formulated his economic ideas and principles in the context of his ideal socio-economic order. गांधी जी ने उनके इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स कुछ कॉन्टेस्ट में बोले हैं. उनके आइडियाज़ उन्होंने प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर में बोले हैं. अब वो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, अ नॉन वायलेंस, अ नॉन एक्सप्लोटिव, ह्यूमैनिटिस्टिक, इग्लिटेरियन सोसाइटी, अ सर्वोदया सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर. सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले नॉन वायलेंस आता है, नॉन एक्सप्लॉइटिव, ह्यूमनिस्टिक एंड एग्लिटेरियन सोसाइटी, अ सर्वोदया सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ गांधीयन सर्वोदया इंक्लूड स्वदेशी. सी, अब बेसिक कंपोनेंट्स क्या है इसके, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ गांधीयन सर्वोदया इंक्लूड्स स्वदेशी, ब्रेड लेवल, अपरिग्रह और नॉन पोजिशन, ट्रस्टशिप, नॉन एक्सप्लॉइटेशन एंड समभावन भावा. अब बेसिक कंपोनेंट क्या है, मतलब कंपोनेंट यानी बेसिक चीज़ें आपको क्या लगेगी इसके लिए. बेसिक चीज़ें एज पर द गांधी जी सर्वोदया इंक्लूड स्वदेशी, अपनी ही चीज़ें यूज़ करना, अपनी इंडिया की बनी हुई चीज़ यूज़ करना है. खाना मिले उतना आप कमाओ. अपरिग्रह या फिर नॉन पोजिशन, यू आर नॉट सपोज टू डू द, किसी और चीज़ पे हमला नहीं करना है. ट्रस्टशिप, नॉन एक्सप्लॉइटेशन एंड समभाव भावा. देन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्वदेशी. स्वदेशी लिटरली मीन्स बिलोंगिंग टू वंस ओन कंट्री. स्वदेशी मीन्स क्या है, बिलोंगिंग टू वंस ओन कंट्री. इट ऑल्सो मीन्स रिलायंसेस ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ. स्वदेशी का मीनिंग क्या है, जो भी है सब अपने ओन कंट्री का रहेगा, राइट. इट ऑल्सो मीन्स रिलायंसेस ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ, और इसका एक और मतलब है जो भी है अपने स्ट्रेंथ पे ही करेंगे, जो करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे. स्वदेशी is that spirit in us which restrict us to use and service of our immediate surrounding to the exclusion of the more remote. स्वदेशी क्या है, स्वदेशी इज़ दैट स्पिरिट इन अस विच रिस्ट्रिक्ट अस टू यूज़. स्वदेशी क्या है, ये एक स्पिरिट है जो अपने को बाहर की चीज़ें यूज़ करने से रोकता है. अपने आजू बाजू सराउंडिंग में जो अपनी चीज़ें मिलती है वही यूज़ करो, और जो अपने आजू बाजू जो दूसरी चीज़ें मिलती हैं, दूसरे देश की चीज़ें, वो नहीं यूज़ करना है. फॉर गांधी, Swadeshi is not a narrow concept of using indigenous goods and despising foreign material, but is a way to display genuine love and devotion for the nature. See, for गांधी जी क्या है, स्वदेशी ये एक बहुत ज़्यादा नैरो कंसेप्ट या अलग कुछ नहीं है. इसके अंदर वो एक ही बोल रहे हैं, आप अपनी चीज़ें खरीदो तो अपने देश को फ़ायदा होगा. अगर आप बाहर की देश की चीज़ें खरीदोगे क्या होगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा. और बट ये आप आपके देश की चीज़ें खरीदोगे तो क्या है, आपका देश के प्रति लव समझ में आता है, आपके नेशन के प्रति योर डिवोशन, वी कैन अंडरस्टैंड दैट. बट इट इज़ अ वे टू डिस्प्ले जेन्युइन लव एंड डिवोशन फॉर द नेचर एंड इट्स कल्चर, एंड is a constant struggle to promote the economic interest of the fellow countrymen, especially when it is threatened by aligned
कंपटीशन। सी क्या है, अपने कंट्री को इकोनॉमिकली अपन अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि पता है कि अपने देश पे कोई और रूल कर रहा है। अगर अपन अपनी कंट्री की चीज़ें प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाहर वाले अपना मार्केट भी पूरा कैप्चर कर लेंगे और इस तरह से अपने को एक खतरा भी बड़ा रहेगा। स्वदेशी इज़ द बेसिक ऑफ द मॉरल इकोनॉमिक्स डिवोटेड बाय गांधी फॉर इंडिया। से स्वदेशी क्या है, इज़ द बेसिस ऑफ द मॉरल इकोनॉमिक्स devoted by Gandhi for India. The promotion of Ayurveda system and nature cure were also part of Swadeshi as practiced by Gandhi. See, आज अपन आयुर्वेद वगैरह बोलते हैं, देखते हैं कितनी तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह आती है। हाँ, ये सब कब था? और नेचर क्योर, नेचर क्योर, नेचर से अपने को बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती है जिससे अपन ठीक हो सकते हैं। आज भी आप छोटे छोटे गाँव में जाओ तो आपको नेचर से वो लोग बहुत से ऐसे फ्रूट या फिर ऐसे पत्ते ला के देते जिससे अपनी बीमारियाँ क्योर होती हैं। ये सभी पार्ट ऑफ स्वदेशी था और ये गांधी जी खुद प्रैक्टिस करते थे। स्वदेशी इज इंटेंशन टू ब्रिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द इंडियन आउटलुक, perception and socio-economic structure. See, Swadeshi is intended to bring about the revolutionary change in the Indian outlook, perception and socio-economic structure. Bread labor, living wage. Labor denotes both mental and physical labor, and Gandhi had no preference for the former at the cost of bread labor, the physical labor. See, labor denotes both mental and physical labor, and Gandhi had no preference for the former at the cost of bread labor, the physical labor. He believed that obedience to law of bread labor will bring about a silent revolution in the structure of society. गांधी जी क्या बिलीव करते थे? ही बिलीव दैट ओबीडियंस टू लॉ ऑफ ब्रेड लेबर, इससे क्या होगा, साइलेंट रिवॉल्यूशन आ सकता है सोसाइटी में। एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड ओनली टू अ लिविंग वेज दैट इज इनफ फॉर द डिसेंट लिविंग अगेंस्ट द सर्विस ही एंड शी रेंडर टू द सोसाइटी एंड नथिंग मोर। सी, हर इंडिविजुअल को इतना तो मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से उसको खाना पीना मिल सके और वो डिसेंट लाइफ जी सके। बाकी जो भी रहेगा वो अपनी सोसाइटी को दे दे ताकि हर किसी का अच्छे से डेवलपमेंट हो। देन अपरिग्रह और नॉन पोजेशन। फॉर गांधी जी द डॉक्ट्राइन ऑफ अपरिग्रह और नॉन पोजेशन मीन्स दैट एवरीवन हैज़ टू लिमिट one's own possession to what is needed by one and spend the rest for the welfare of others. See, for Gandhi ji द डॉक्ट्राइन ऑफ अपरिग्रह और नॉन पोजेशन मीन्स क्या है, हर किसी को अपना एक पोजीशन, एक लिमिट रखना चाहिए कि बाबा इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, तो क्या है आपकी नीड भी पूरी होगी और बाकी क्या करना चाहिए, वी शुड स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, बाकी दूसरों की भलाई के लिए दे देना चाहिए। He considered this as a desirable, non-violent method of reducing inequality of income distribution and maldistribution of wealth, and in that sense, non-possession in practice means possession by all. See, अगर आप ऐसे करोगे, ये सही तरीका बोल रहे, क्यों? इससे क्या होगा, नॉन वायलेंट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी अपने आप कम हो जाएगी सोसाइटी में। लाइक जिसके पास बहुत ज़्यादा है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लाइक इतना मुझे लगता है, इतना मैं रखता हूँ, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वो भी कम हो जाएगा, एंड इन दैट सेंस नॉन पोजेशन इन प्रैक्टिस मीन्स पोजेशन बाय ऑल। सी, नॉन पोजेशन इन प्रैक्टिस को करने का मतलब क्या है, जो भी है सबका है, मेरे अकेले का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नॉन पोजेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। से नॉन पोजेशन क्या है, इज द अनदर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस सिंस पोजेशन इन्वॉल्व्स एंड लीड्स टू वायलेशन फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वंस ओन पोजेशन। सी, नॉन पोजेशन क्या है, इज अनदर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिंस पोजेशन इन्वॉल्व्स and leads to violence for the sake of protection and promotion of one's own possession. Then the next point is trustship. Trustship is the theory closely linked to the concept of Sarvodaya with its fundamental objective to establish
establish non-violent and non-exploitative property relationship. See, trustship ये क्या है? Is a theory closely linked to the concept of सर्वोदय. See, trustship क्या है? Trustship ये किससे linked है? It is the theory which is closely linked to the concept of सर्वोदय with the fundamental objective to establish, just a minute, with the fundamental objective to establish non-violent and non-exploitative property relationship. Possession and private property are source of violence and in contradiction with the divine reality that all wealth belong to all people. See, possession and private property ये क्या है? These are the source of violence and it contradictions with the divine reality that all wealth belong to all people. Gandhi recognized that the concept of ownership would not wither away easily. See, गांधी जी को पता चल गया ये जो कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप है ये इतना इजीली जाएगा नहीं, नॉर वुड द वेल्थियर भी इजीली परस्यू टू शेयर देयर वेल्थ. ये कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप इतनी आसानी से जाएगा नहीं, ना ही ये पैसे वाले लोग अपनी वेल्थ आसानी से शेयर करने वाले हैं. Therefore, a compromise was to encourage the wealthy to hold their wealth in trust, to use for them only what was necessary, and to allow the remainder to be utilized for the benefit of the whole society. Therefore, a compromise was to encourage. अभी कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो. अब वेल्दी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं शेयर करूँगी क्या किसी के साथ जल्दी? ऑब्वियसली आई वॉन्ट शेयर दैट, राइट. बट कहीं ना कहीं तो मुझे सोसाइटी के बारे में सोच के कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. तो क्या है? ट्रस्ट, वेल्थ इन ट्रस्ट दे देने का. जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही रखो आप, बाकी क्या करो एक ट्रस्ट के नाम पे दे दो. सो दैट जितना आपको ज़रूरी है आप यूज़ करो और बाकी जो है जिनको ज़रूरत है उनको यूज़ करने दो. The concept of trustship is based on the principle of non-possession of the means of production and economic equality. See, अभी जो concept of trust है, it is based on the principle of non-possession of means of production and economic equality. Trustship is its natural corollary and is सर्वोदय extended to the firm. See, trustship क्या है? Trustship is its naturally corollary and is sarvodaya extended to the firm. The concept of trustship is born out of Gandhi's profound belief in the goodness of human being. See, जो concept of trustship है is born out of Gandhi's profound belief in the goodness of human being. Its appeal was to the higher, better sense of the landlords and the industrialists. See, Gandhi's profound belief in the goodness of human being. गांधी जी किसमें बिलीव करते हैं? आप ह्यूमन बीइंग अच्छे से रहो. वो ह्यूमन बीइंग को अपील करते हैं कि बाबा आप अच्छी तरह से सब काम करो. Trustship is based on the noble idea that what belongs to me is the right to an honorable livelihood. See, trustship क्या है? It is based on the idea जो मेरा है वो मेरे लिए ज़रूरी है, राइट. नो बेटर देन एन्जॉयड बाय मिलियंस ऑफ अदर. और फिर जितना मेरे लिए ज़रूरी है उतना मैं रखूँगा और बाकी का क्या है? आई वुड कीप इट फॉर अदर टू एन्जॉय. द रेस्ट ऑफ माई वेल्थ बिलोंग टू द कम्युनिटी एंड मस्ट बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. से और बाकी की जो वेल्थ है वो मैं कम्युनिटी को देता हूँ और वो कम्युनिटी लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉन एक्सप्लॉयटेशन. Non-exploitation lies at the root of all socio-economic problem and as such the removal of exploitation is a basic requisite for सर्वोदया. See, exploitation क्या है? Lies at the root of all socio-economic problem और एंड ये बेसिक है और इसको एक्सप्लॉयटेशन को हटाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर सर्वोदया. देयर कैन बी नो लिविंग हार्मोनी बिटवीन नेशन, रेस, community, classes and caste unless the main cause exploitation of the weak by the strong is removed. See, there can be no living harmony between. कोई भी शांति से नहीं रह सकता, ना नेशन, ना कोई रास,
ना कोई कम्युनिटी, ना कोई क्लास कास्ट, अनलेस जब तक कि एक्सप्लॉयटेशन हट नहीं जाएगा। ओनली अ नॉन एक्सप्लॉयटिव सोसाइटी कैन बी सर्वोदया सोसाइटी। सी, जिस सोसाइटी में कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, दैट कुड बी अ सर्वोदया सोसाइटी। देन समभावा, sense of equality. In Gandhi's grand vision of Sarvodaya society, socio-economic equality occupies a central place, and it is both an essential principle and dispensable condition. See, in Gandhi's grand vision of Sarvodaya society क्या है? सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑक्यूपाइज अ, इक्वालिटी रहना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये इसेंशियल प्रिंसिपल है। ही advocated equality not between the equals but equality between the prince and the peasant। से इक्वालिटी जो आपके लेवल के लोग हैं उनके साथ ही नहीं, बट प्रिंस और पीसेंट दोनों को इक्वल मानना है आपको। वेल्थी एंड पुअर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेस, एंड लिटरेट एंड इलिटरेट, इन सबको आपको एक समान रखना है, एक जैसा रखना है। It is not equality in physical sense, which is unnatural and difficult to achieve, but in a moral sense. See, it is not equal in physical sense, which is unnatural and difficult to achieve, but in a moral sense. For Gandhi, the equality means providing equal preferences and opportunity. See, गांधी जी के लिए क्या है? Equality means providing equal preferences and opportunity. When there is redistribution of land, we shall have full employment and equitable redistribution of nation dividend, and thus we shall attain आर्थिक समानता, social equality, which in turn will gradually lead to समभावना। See, when there is redistribution of land, अपन ने देखना चाहिए कि वहाँ तक फुल एम्प्लॉयमेंट हो और रीडिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो, तभी क्या होगा? तभी आर्थिक समानता रहेगी, तभी इकोनॉमिक इक्वालिटी रहेगी, और इससे आपको क्या है? संभावना। दिस वुड बी लीड टू अ संभावना। सी, वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक हियर। अपना थर्ड चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी। माई मेल आई डी rasika.pakaria@araham.edu.in। थैंक यू।